الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مرتبہ ہمیں درود کی محفل میں حقیقت ایمان کے بارے میں احادیث جو ہے ذکر کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمیں المنہاج الصبی کتاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، اس میں فصل فی علامت المؤمن و اوصافی، یعنی مومن کی علامت اور صفات کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ تعالی آج جان لینے کی کوشش کریں۔ یعنی کوئی بندہ مومن ہے تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیسے رہتی اور اس کے اوصاف، اس کی کیریکٹرسٹکس کیسے رہتی، اس کے لکشنالو بولتے ہیں وہ کیسے رہے گی۔ تو اس کے بارے میں حدیث جو ہے، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسایوں کو نہ ستائے۔ نمبر 1 کیریکٹر کیا ہے، نمبر 1 نشانی کیا ہے مومن کی؟ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو یعنی پڑوسی کو نہ ستائے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ہمیں 3 کیریکٹرز بتائے جو مومن کو اپنا لینی چاہیے یا اس کی نشانیاں بتائیں۔ ایک کیا ہے، مومن کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دوسری بات، مومن مہمان کی عزت کرتا ہے۔ تیسری بات، اگر وہ کچھ بولے تو خیر کی بات بولتا ہے، اچھائی کی بات بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، متفقون علیہ حدیث ہے، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہے؟ ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے۔ دیوار کو دیکھو، دیوار اتنی مضبوطی سے کیسے بنتی بولو؟ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے درمیان ہمیں سیمنٹ وغیرہ ڈال کر وہ ایک دوسرے سے جوڑتی تاکہ پوری دیوار کیا ہوتی ہے، وہ مضبوط بن جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کس طرح مضبوط کرتی ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی۔ اب یہ کیسا ہے؟ مضبوطی سے ہے، یہ انگلی ساتھ دیتی ہے۔ تو مسلمان بھائی، مومن بھائی ایک دوسرے سے اس طرح رہنی چاہیے، اللہ کے رسول یہ نصیحت کرے، اور یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک ہمیں جو پسند آتا ہے ہمارے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کریں گے، ہمیں مومن ہی نہیں بن سکتے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، مسلم شریف کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اپنے پڑوسی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، تو تب تک ہمیں مومن نہیں بن سکتے۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु ला युमिनु, वल्लाहु ला युमिनु, वल्लाहु ला युमिनु, 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। तो फिर इसके बाद खीला मन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अर्ज़ किया गया कौन या रसूलुल्लाह, कौन मोमिन नहीं, किसके बारे में आप फरमाती, ये पूछा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी एजार सानी से महफूज नहीं, जिसका पड़ोसी उसकी शर से, यानी हमें जो बातें बोलती हैं, हमारे तकलीफ़ जो भी है हमारे पड़ोसी को पहुँचती है तो हमें मोमिन नहीं, हमारे शर से, हमारे दिए हुए तकालीफ से महफूज है, हमें किसी को तकलीफ़ देते नहीं आजू बाजू घर वाले को, तो जान लो तुम्हें मोमिन है। अगर कौन तो दूसरे आदमी को तकलीफ़ देता है बाजू घर वाले को, जान लो अल्लाह के रसूल कसम उठा कर फरमाएं वल्लाहु ला युमिन, वो मोमिन नहीं हो सकता। तो जान लो मुसलमानों, अपने भाइयों से लड़ लेना, अपने भाइयों से नाराज़गी इख्तियार करना, अपने पड़ोसियों को नाराज़गी करना और उनको तकलीफ़ देना, ये ईमान वालों की निशानी नहीं है। उनको तकलीफ़ ना देना ये ईमान वालों की निशानी है। दूसरी हदीस हज़रत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन की मिसाल एक दूसरे पर रहम करने, दोस्ती रखने और शफ़क़त का मुज़ाहिरा करने में एक जिस्म की तरह है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए कैसा है, एक जिस्म के मानी, कैसा, वो भी एक दूसरे के ऊपर रहम करने में, दोस्ती रखने में, शफ़क़त का मुज़ाहिरा करने में एक दूसरे के मानिंद कैसा है, एक जिस्म की तरह है। चुनांचे जब जिस्म का कोई हिस्सा भी तकलीफ़ पहुंचती है तो सारा जिस्म में ख्वाबी और बुखार में उसका शरीक हो जाता है। यानी अगर कोई जिस्म में किसी जगह तकलीफ़ है तो पूरी जिस्म जो है उस तकलीफ़ को उठाना पड़ता है, उस तकलीफ़ में शरीक रहता है। इसी तरह मुसलमान जो है अपने भाइयों के लिए रहम करने में शरीक होना और दोस्ती में शरीक होना, उनके ऊपर शफ़क़त फरमाने में शरीक होना और एक दूसरे की तकलीफ़ को बांट लेने में शरीक होना। किसी मुसलमान भाई के लिए कोई तकलीफ़ दह चीज़ है या हमें दूर कर सकते नहीं है, कम से कम हमारे दिल में उस तकलीफ़ की एहसास होना, मेरा एक मुसलमान भाई जो है तकलीफ़ में मुब्तला है, मुसीबतों में मुब्तला है, तो ये ख्याल तो हमें है ना। उलट यहाँ पे ये है कोई मुसलमान भाई मुसीबतों में मुब्तला है तो बाज़ लोग जो है खुशी का इजहार करते हैं। ये शैतानत है, ये इंसानियत भी नहीं, ये इस्लाम भी नहीं, ये मुसलमानों के अखलाक और रवैया बिल्कुल भी नहीं। तो याद रख लो कि मुसलमान एक दूसरे के, उसके आमाल बाद में देखेंगे, उसके नमाज रोज़े बाद में देखेंगे, उसके अखलाक बाद में देखेंगे। वो मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाया है, यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, तो उसकी तकलीफ़ को जो है हमें भी हमारी तकलीफ़ जैसी महसूस करते, हो सके तो हमें मदद करनी भी चाहिए और उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये हदीस भी बुखारी शरीफ में है। और एक हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला, उनसे रिवायत है कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, क्या तुम जानते हो मोमिन कौन है? हुजूर पूछते हैं, क्या तुम जानते हो मोमिन कौन है? तदरून मनिल मुमिनीन, तुम जानते हो मोमिन कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे अहले ईमान अपनी जान व माल महफूज हो। यानी ईमान वालों के लिए उनकी जान व माल किसके ज़रिए महफूज है, वो मोमिन है। और मुहाजिर वो है जिसने बुराई छोड़ दी और उससे परहेज़ किया। हमें मुहाजिरीन का तो कौन है बोलो? हिजरत करने वाला, जो मक्का से या मक्का से हबशा को या मक्का से मदीने को जो सहाबा करम हिजरत करे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मुहाजिरीन। मुहाजिरीन के पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हर एक बंदा भी मुहाजिर बन सकता है।
मुहाजिर वो है जो अपने गुनाहों को छोड़ दिया है, अपने बुरे कामों को छोड़ दिया है, नेकी के रास्ते में आ गया है, ये मुहाजिर है। आज के दिन जो गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आया है वो मुहाजिर है, और उससे परहेज़ करता है, गलत कामों से परहेज़ करता है, दूर रहता है, ये बंदा मुहाजिर है। और मोमिन कौन है? अहले ईमान अपनी जान और माल पर महफूज हो, यानी इन्हें कोई मोमिन को सताता नहीं, कोई मोमिन को गाली देता नहीं, कोई मोमिन के ऊपर हाथ उठाता नहीं। जो भी मोमिन बंदा है इसके हाथ से महफूज है, इसकी ज़ुबान से महफूज है, वो सच्चा मुसलमान है, सच्चा मोमिन है। यह हदीस अहमद में है, अहमद बिन हम्बल में और तबरानी में है। और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने भाई का आईना है। ये बहुत बड़ी हदीस है, ये अमल करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन अमल करे तो दुनिया और आखिरत में हर एक का भी भलाई होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मोमिन अपने भाई का आईना है। आईना क्या करती बोलो? जो हमारे पास ओरिजिनलिटी है वो दिखाती है ना। क्या हमारे सेल के जैसा सूरत में कुछ काला वगैरह है तो वाइट करके दिखाता है ना? नहीं, आईना जैसा है वैसा बताते, तेरा ट्रू सूरत को बताते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन अपने भाई का आईना है, यानी इन्हें भी क्या करना है, जो उसके पास है वो बताना, ना एक्स्ट्रा ना कम। बुराई है तो बुराई, अच्छा है तो अच्छाई। तो रसूलुल्लाह फरमाती हैं, जब उसमें कोई बुराई देखता है तो उस बुराई की इस्लाह कर लेता है। क्या करता है मोमिन? अपने भाई के ज़िंदगी में या उसके अखलाक में कोई बुराई देखता है, वाकई ने सच्चा दोस्त है, सच्चा मोमिन है, तो उस बुराई को दूर कर को उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि उसे गालियाँ दे को इस्लाह करने का नहीं, इसे कोई इस्लाह बोलते हैं। क्या करना? उसकी बुराई को दूर करने की कोशिश करना। भाई तेरे अंदर जो है ये खराबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ऐसा नहीं होनी चाहिए, देखो एडजस्ट कर लो, ज़रा कोशिश करो बदलने की, बस इतना। तो उससे कुछ फ़ायदा हासिल करना है, उसकी गलतियां को पूरा हमें सीमेंट से थोप को उसके सामने जो है चेहरा खिलखिलाते हुए बात करना, ये मोमिन का काम नहीं हो सकता। मोमिन कभी भी उसके दिल में उसके बारे में जो है वो इजहार करता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में, अच्छे तरीके में इस्लाह करने की कोशिश करना। ये बुखारी में भी है, अल-अदबुल मुफ़रद में, और इब्न मुबारक की ज़ुहद की किताब में भी है। तो ये मुख्तसर चंद अहादीस जो है मोमिन की अलामत और अवसाफ के बारे में, इन अहादीस को याद रख लो। इसमें बिलखुसूस क्या तरकीब दिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन कामिल मोमिन वो है कि उसके ज़रिए किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती, चाहे उसका साथी हो, चाहे मुसलमान हो, मोमिन हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, इसके हाथ से, इसके ज़ुबान से और इसके रवैयों से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचना। और इन्हें मुसलमानों का, मोमिनों का खैरखा बनना, उनके लिए इन्हें रहम की, इसके दिल में रहम पैदा करना और उनके लिए शफ़क़त करना और उनकी तकालीफ़ को दूर करने की कोशिश करना, उनकी तकालीफ़ में शरीक होने की कोशिश करना। और इसी तरह अगर कोई उनमें बुराई देखता है तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करना, जैसा कि एक आईना अपनी बुराइयों को दिखाता है, इस तरह करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला इन सब बातों के ऊपर हम सब का अमल करने की तौफीक अता फरमाए।